Good evening, everyone. I hope we are live. Just let me check once. Yeah, I think I'm audible. Um, I guess yes. So today we'll be continuing with the part that we had earlier, carried on with the greedy algorithm. And these are the things that we learned in a greedy algorithm. The concepts included the local optimal solutions, global optimal solutions, how we proceed from building a locally optimized solution that is true for a particular path, and then we can prove it that this particular solution will be uh, the actual solution for a bigger portion of the uh, problem, right? The sub problem. If you solve the sub problem, you are actually solving the problem. So that is sorry. That is what greedy is. Okay. So we saw the coin problem. We also saw that some problems cannot be solved via greedy algorithms, and we then had to, we then have to take cover of the dynamic programming algorithms. That probably we will learn after this greedy algorithm gets over. Okay. We saw this maximum subarray sum. That was the Kadani's algorithm, right? And yeah, and yeah, this was what we did. So let's see what we have today in our agenda, kind of. Okay. So today we'll be only doing two questions, and we'll see that how we can implement greedy in this particular in these particular questions, right? And it is jump game one and jump game two. Okay, these are quite similar problem, but with a subtle difference. Okay, we'll also see particularly two methods. Okay, that is recursion and greedy. Here also we'll be seeing the same. Although we have a dynamic programming approach, but this will be doing later on. Okay. Let's see if we can get back to this particular question only and check how we'll be proceeding with the dynamic programming approach. Okay, so let's get started with the jump game problem 55 on lead code. Okay, so it tells us that you are given an integer array nums initial and you're initially positioned at the array's first index. Okay, and each element in the array represents your maximum jump length at that position. Return true if you can reach the last index or false otherwise. So what this question is telling you is you are given arrays, right? This is your nums array or vector, and each index I tells you that the maximum jump you can make from that particular index. मतलब अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो in one go you can make a jump that is 4 index ahead, like 1, 2, 3, and 4. You can directly jump to this particular point if there is a 4 written here, right? If there is a 2 written here, then from this particular index you can jump and come up to this particular point. Okay, this is quite visible, I think. Yes. Okay, so this is what it means. Let's take the example that is provided here, that is 2, 3, 1, comma 1, comma 4. And here we can see that if we start from the first index, and since it's written that we are starting from the first index, so with this particular point we can jump either this to this index or to this index. Okay, now suppose we are at 3. So from 3 what you can choose is you can either jump here, or you can jump here, or you can jump here, right? And since we are reaching the final index, hence the answer is true, right? Jump one step from index 0 to 1. So you are choosing this particular thing, right? From 0 to from 2 to this third wala position pe, and then 3 steps to the last index. So directly to this particular index, right? And hence your answer is true. But in this particular case, you see,
You have 3, 2, 1, comma 0, comma 4. Now see, suppose if you start from 3, you have these particular options, right? With 2, you have these options. With 1, you have this option, and with 0, you don't have any option. That is, you get stuck at this position and you hence do not reach the final position, and your answer should be false. Okay. So, how can we proceed and solve these kind of questions? First of all is very intuitive that what we are doing is we are catching a particular index and we are checking कि कहाँ तक हम jump कर सकते हैं इसको लेकर, ठीक है? अभी क्या किया एक्चुअल में? यहाँ से चेक किया 3 पे जा सकते हैं और 1 पे जा सकते हैं और 3 से चेक किया कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, राइट? सिमिलरली 1 से चेक करेंगे अगर फाइनल पोजीशन पे नहीं आएंगे तो. So what we are doing is we are checking for every particular index, right? For every particular index, you are checking that what is or which positions I can go to. And you're considering every possible position until and unless you're exhausted and you decide if you reach or you don't reach the final position, right? So this is what our recursive approach will include, okay? This exactly is what our recursive approach will be, and we'll see what it is, okay? Let's see. So in recursion, what we are particularly doing is we are checking that what is the maximum possible depth that I can jump up to. Okay. मतलब 3 से maximum possible depth क्या है? You can jump till this particular point 0. ठीक है. But you will also consider the positions in between. What I am telling is this is a kind of depth first search algorithm जहाँ पे you are checking max jump. ठीक है. कि एक particular position से कहाँ तक हम maximum jump कर सकते हैं. But in this you have to check, you have to consider every index from the current index up to the max jump index. If you're getting what I'm telling you is जब तुम यहाँ से 2 पे जंप करोगे, ठीक है, इस पोजीशन पे जब तुम 2 पे रहोगे तो तुमको 2 से चेक करना होगा कि तुम मैक्सिमम कहाँ तक जंप कर सकते हो, 0. बट आगे जाके तुम 1 पे भी चेक करोगे. व्हाट इफ दिस वाज 2 एंड यू कैन गेट टू 4, राइट? सो you'll have to consider all the positions that lie in between. Okay, this is exactly what we'll be implementing. But there is a problem here कि हम लोग को TLE आएगा इस पे, क्योंकि the time complexity if you see, then it is exponential and you will take order of n factorial because you are considering all the permutations, like, so if the condition was n comma n comma n comma n, तो तुम हर एक कंडीशन को लेकर सारा एलिमेंट्स तक चेक कर रहोगे, राइट? ठीक है. अगर तुम कंडीशन लो n comma n comma n comma n एंड सपोज द लास्ट इंडेक्स इज n plus 1, बिकॉज n अगर रहेगा तो तुम पहले में ही शायद लास्ट को पहुंच के और ट्रू कर दोगे. बट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन you will see that for every particular n, मतलब तुम यहाँ तक इस particular position पे जाओगे, this should be n minus 1, this should be n minus 2, ठीक है? This is the worst condition कि तुम इस particular position तक जा रहे हो और तुम सारे positions के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है? That gives us an order of an exponential order which is order of n factorial, okay? तो ये of course TLE देगा, but we'll see कि recursion काम कैसे करने का है इसमें. So let's try and do it here only, although we won't be submitting that particular solution, okay? Right. So you return a DFS, okay? You pass on the nums value and you pass on the starting index कि हम 0 से start कर रहे हैं, ठीक है? अभी once you like you are calling a function, so you'll definitely have to like make a function, right? So DFS again vector int k. K में वो वैल्यू स्टोर किया. अभी recursion का base condition क्या है? This is the base condition कि if you reach the end, then you return true, right? So if k is our index, okay, here k is our index.
So if k is equals to nums dot size minus 1, right? Then you return true. हम्म और नहीं तो तू क्या कर रही है कि हर बार चेक कर रहे हो कि हमारा मैक्सिमम ये क्या है, लाइक मैक्सिमम जंप. ओके, so how can you get maximum jump? In max jump is equals to maximum of, okay, or rather minimum of, see, minimum of nums dot size minus 1. मतलब या तो तुम end तक jump कर गए. Why this condition? Because suppose in a particular case you have 8 here and the last index is 1 यहाँ पे. तो इस पोजीशन से अगर तुम 8 जंप करोगे तो यू विल गो आउट ऑफ बाउंड, राइट? सो यू हैव टू कंसीडर द मिनिमम. या तो तुम यहाँ तक ही जंप कर सकते हो ना, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल जंप यहाँ तक ही है, इससे बाहर तो नहीं जा सकते हम लोग. सो यू हैव टू कंसीडर द मिनिमम ऑफ नम्स डॉट साइज माइनस 1, आइदर दिस पर्टिकुलर पोजीशन और यहाँ पे कहीं 2 रहा तो 1 and 2 दिस पर्टिकुलर पोजीशन. और what will this particular position be if this index is I? This particular position will be I plus nums of I, right? सोचो थोड़ा. This will be I plus nums at I, है ना? And now for int I is equals to 0, I is less than, not 0 actually, but the particular position that is k. तो हम लोग k कंसिडर करेंगे क्या? जंप में k कंसिडर करेंगे क्या? तुम 3 से जब चेक कर रहे होते हो 2 1 और 0, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में थोड़ा क्लियर लिखते हैं, ठीक है, 3 2 1 0. सो जब तुम 3 से चेक कर रहे हो 2 1 0, तो तुम 3 चेक कर रहे हो क्या? 3 तो नहीं चेक कर रहे हो, उसके एक आगे पोजीशन से चेक कर रहे हो. सो इट गोज फ्रॉम I equals to k plus 1. Where does it end? At 0. So is less than or equals to max of jump, right? I plus plus. And for every position, what you are checking is if, now you are recursively checking actually, if DFS of nums comma that particular I, if this returns true, you'll have to return true in this particular case also. And if this whole thing returns false, then you have a like baseline condition कि अगर वो कुछ सही नहीं हो रहा तो it's false. If you're getting it, what this is doing is for every particular index that you are jumping to, it's checking all the possible jumps that you can make the next in the next step. Okay, I hope you're getting it. ये वापस से इसको कॉल कर रहा है with I equals to k plus 1 k plus 2 k plus 3 up to तुम्हारा मैक्सिमम जंप तक. और ये सारे इंडेक्स के लिए होगा. k plus 1 जब यहाँ पे आएगा I equals to k plus 1, तो k plus 1 के लिए भी तुम एक ये काउंट कर रहे होगे. दिस इज एक्चुअली नहीं नहीं, यहाँ पे k होना चाहिए. तो तुम k के लिए भी एक मैक्स जंप काउंट कर रहे होगे और फिर उसके लिए रिकर्सिवली इटरेट कर रहे होगे, राइट? एक बार रन करके देखो इफ दिस वर्क्स. No matching function call to min. No matching function call to this, comma this. Just 1 second. Explicitly typecast it to integer. अभी कभी करेंगे. Oh, fine, this works. बट अगर इसको सबमिट करेंगे ना तो टाइम लिमिटेशन एरर आएगा. टाइम लिमिट एरर, ठीक है. टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा रादर बिकॉज वो, as I told you, this is order of n factorial. Now we will be seeing what a better approach can be using our greedy solution. तो ग्रेडी सॉल्यूशन एकदम, मतलब एकदम लोएस्ट लेवल का एक अप्रोच सोचने का बात होता है कि लाइक हम लोग कम से कम टाइम में एक ऐसा कुछ अप्रोच लेकर आए ताकि फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स दैट इज ट्रू एंड फॉर ऑल द इंडेक्स दैट इज ट्रू. अगर ये वाला पार्ट नहीं भी सोचोगे ना तब भी तुम ग्रीडी का एल्गोरिदम सोच पाओगे, इवन इफ यू डोंट
लाइक थिंक कि हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए ट्रू सोचेंगे और फिर बाद में पूरा इंडेक्स के लिए ट्रू प्रूव करेंगे, जरूरी नहीं है। तुम अगर थोड़ा इंट्यूटिवली सोचोगे तो तुमको यह पता चलेगा कि 2 3 1 1 4, ठीक है, 2 3 1 1 4। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या कहता है इस केस में कि सपोज करो फ्रॉम द एंड यू आर एट 4, ठीक है, अब तुम चेक करो कि तुम 4 कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हो। कैन यू रीच फ्रॉम 1? यस, ठीक है। अभी जैसे हम लोग 1 से पहुंच सकते हैं, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना कि अगर हम 1 तक पहुंच गए तो हम 4 पहुंच जाएंगे, राइट? सो नाउ आवर मोटिव इज टू रीच 1। सो नाउ आवर फाइनल पॉइंट और rather द गोल इज 1। नाउ फॉर 1 यू चेक कि इससे पहले हम कौन सा ऐसा इंडेक्स है जहां से 1 पहुंच सकते हैं। फ्रॉम दिस यू कैन रीच टू 1, राइट? सो यू मेक दिस एज द goal, okay, and you keep on checking. If at the end your goal is equals to 0, ऐसा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो यू विल बी रिटर्निंग ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग 0th इंडेक्स से भी स्टार्ट करें ना, तो हम लोग लास्ट इंडेक्स तक पहुंच रहे होंगे कैसे कैसे करके, ठीक है। अभी ये सेकंड वाले केस के लिए ट्रू नहीं होगा। देखो 3 2 1 0 4 के लिए क्या होगा कि यू हैव 3 2 1 0 and 4। इफ यू कैच ऑन टू 4 एंड यू चेक कि पहले ऐसा कोई इंडेक्स है जिससे हम 4 पे पहुंच सकते हैं, सो यू गो अप टू 0, यू चेक दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, सो ओके दिस इज नॉट, this can't be our next goal. Okay, you go up to 1. Is this possible to reach 4 directly? No. With 2, no. With 3, no. And since you reach the end and it's still not possible to reach 4, if you can never reach the goal, okay, then you have to return false, right? इसमें बस एक ही कैच है कि यू आर स्टार्टिंग द ट्रेवर्सल फ्रॉम द बैक साइड, रिवर्स पे ट्राई कर रहे हो कि तुम 4 पकड़ के चले हो फिर पीछे से देख रहे हो, ठीक है। तो इसको करते हैं कोड, ठीक है। So there are two things to check. Okay, you are asking for which are the positions that can lead to final position, and then you are updating uh, updating the final position, and then you are again checking that which are this। but यहाँ पे recursion call नहीं हो रहा है, हम लोग iteratively check करेंगे, ठीक है, यहाँ से start करके पीछे जाते जाते check करेंगे, ठीक है। So what can be the equation, the algorithm? First of all you initialize की एक ending है हमारा nums dot size -1 से। अभी तुम जो लूप चलाओगे i is equals to कहाँ से, एंड से, या फिर फॉर 4 आर यू चेकिंग कि 4 हम लोग पहुंच सकते हैं कि नहीं, नहीं ना, तो तुम ऑफकोर्स 1 से चेक करोगे। सो यू आर चेकिंग इट फ्रॉम एंड -1, ठीक है। i is greater than equals to 0, i minus minus, ठीक है। और हम लोग एंड को अपडेट, सिंस यहाँ पे एंड लेके रखा है, तो अभी एंड को ही अपडेट करते जाएंगे अगर वो पॉसिबल है हुआ वहां से पहुंचना। सो इफ यू हैव i प्लस nums at i, राइट, ये तो जंप है ना जो तुम ले सकते हो मैक्सिमम। दिस इज व्हाट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, राइट? अगर मैक्सिमम है तो तुम उससे कम करके तो ऑफकोर्स जंप कर ही सकते हो। अगर ऐसा है तो यू आर अपडेटिंग एंड टू आई, ठीक है। और लास्ट में यू आर चेकिंग कि रिटर्न एंड इक्वल्स टू 0, मतलब कि तुम्हारा 0th पोजीशन से वो चीज पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स कोड इट। इसको हम लोग सबमिट कर रहे होंगे। सो यू हैव int end is equals to nums dot size -1 for int I is equals to n minus 1, I is greater than equal to 0, I minus minus, if you have I plus nums at I greater than equals to n,
So what you're doing is end को update कर रहे हो, right? End is equal to, and then you check whether or not end is equal to 0. अगर ये कंडीशन लिख के देते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा. Let's see. Uh, no, no, no. You can't do this. You have to write num set size -2. क्योंकि एंड अपडेट कर रहे हैं ना, वापस से आई वहां चला जाएगा. Okay, works. Let's see if this gets submitted. Perfect, fine. So ये तेरा jump game 1 का exactly the same. And of course the time complexity is order of n. ठीक है, तो सिंगल इटरेशन बस चल रहा है लास्ट सेकंड लास्ट इंडेक्स से. और तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही है, कुछ स्पेस लिए नहीं हम लोग एक्स्ट्रा. ठीक है, रिकर्शन में वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n फैक्टोरियल, अगर जितना नंबर ऑफ कॉल्स होगा ऑफ कोर्स. सो योर नंबर ऑफ कॉल्स इज, हाँ n फैक्टोरियल अगर हुआ तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही हो जाएगा. विल इट बी n फैक्टोरियल? हाँ जो भी, शायद वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n फैक्टोरियल ही हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैक का कॉल स्टैक में तुम उतना ही स्पेस ले रहे होगे. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बेटर है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज jump game 2. This is quite similar. You have just a subtle modification here. कि you are given a 0th index array, you are initially positioned at index 0. Again, the same thing. You can jump up to any index I plus j, जहाँ पे j तुम्हारा maximum वो है. ठीक है. Now you have to return the minimum number of jumps to reach n minus 1. मतलब कि last index को reach करने के लिए what is the minimum number of jumps. ठीक है. The test cases are generated such that you always reach n minus 1. तो यहाँ पे हमारा वो condition नहीं है कि you need to check whether true or false. ठीक है. It is always true. It's written there that we are always reaching the end position. So with 2 3 1 1 4, let's see what is our minimum jump. So 2 से अगर तुम यहाँ पे जंप कर जाओगे तो फंस जाओगे. ठीक है, तुम ये वाला 3 जंप आएगा. बट 2 से अगर यहाँ पे जंप करेंगे तो यहाँ से 2 बार में हम लास्ट का पहुंच सकते हैं. देखो, है ना, ये 2 है. ऐसा सिचुएशंस में पता है, ये सिचुएशंस में जहाँ पे तुमको प्रोबेबिलिटीज कंसिडर करना है, प्रोबेबिलिटीज नहीं सॉरी, पॉसिबिलिटीज कंसिडर करना है कि कौन सा पाथ चूज करना है, कहाँ जाना है, वहां पे जनरली ग्रीडी या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच लगता है. ठीक है, तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कर रहे होते हो कि यू आर एक्चुअली फॉर एवरी स्टेट यू आर चेकिंग कि उस स्टेट पे पहुंचने में अब मेरे को कितना मिनिमम मूव्स लगेगा. और तुम ये चीज बार बार नहीं कर रहे होते. रिकर्शन में क्या होता है, ठीक है, रिकर्शन में क्या होता है कि जब तुम डीएफएस कॉल करते हो ना, फॉर लेट्स से यहाँ पे तुम सेकेंड इंडेक्स के लिए कॉल किए हो, सेकेंड के लिए, तो ये बार बार डीएफएस 1 और डीएफएस 0 यहाँ पे जाके और फिर यहाँ से बेस कंडीशन हिट करेगा. ठीक है, अभी तुम वापस 3 के लिए कॉल करोगे तो डीएफएस 3 क्या करेगा, डीएफएस 2, डीएफएस 1 और डीएफएस 0 और फिर बेस पे जाएगा. अभी देखो यहाँ पे डीएफएस 2 को हमने 2 बार कैलकुलेट किया, राइट. डीएफएस 1 को हमने 2 बार कैलकुलेट किया. तो जितना बार रिकर्सिव कॉल करेंगे उतना बार हमारा डीएफएस भी वो होगा, राइट, कॉल होगा, वापस से कंप्यूट होगा, वापस टाइम लगेगा. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है कि इस पर्टिकुलर डीएफएस 1 को अगर यू, व्हाट डीपी डज इज, इफ यू वंस एनकाउंटर दिस पर्टिकुलर थिंग डीएफएस 1, तो अब तुम इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे होगे. इट मेमोराइजेस इट. मेमोराइजेस इट मतलब एक एरे में या फिर एक वेक्टर में उसको स्टोर कर देता है कि जब जब तुमको रिक्वायरमेंट है तुम एक बार चेक करो कि वेदर वी हैव बीन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट और नॉट. इफ वी हैव बीन, यू डायरेक्टली कैलकुलेट वहां से कि हमारा मिनिमम इतना लगा है यहाँ पहुंचने में, तो अब तुम पीछे का कोई भी चीज ले लो, यहाँ पहुंचने में उतना ही लगेगा. गेटिंग माई पॉइंट. वो डीपी का एक ये फायदा है. तो ऐसे केसेस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगता है, जो कि हम लोग शायद बाद में देख रहे होंगे. इफ वी हैव एनफ लेक्चर्स left, I guess today is the 20th or 21st one.
So we have 4 or 5 sessions left. Okay. Okay. Moving back to the question. Jump came to right. इसको copy paste करते हैं यहाँ से. So you are given a zeroth. Oh, sorry. Question तो पढ़ लिया. We are told to reach the end. Find the minimum number of jumps to reach the end. ठीक है. अभी जो यहाँ पे recursive approach use किया था ना, यहाँ से revert कर सकते हैं क्या? हाँ, fine. देखो, ये वाला पार्ट को हम लोग लेते हैं, ठीक है. इसमें ही कुछ चेंजेस करते हैं. देखो, अच्छा वेट, यहाँ पे फंक्शन का नाम दूसरा है. ये वाला पार्ट उठाते हैं. और यहाँ पे बूलियन इस बार नहीं होगा. तुमको एक नंबर रिटर्न करना है ना, सो यू हैव टू रिटर्न इंटीजर वैल्यू. तो यहाँ पे इंटीजर करो इसको, ठीक है. सेम चीजें कर रहे हैं बट इस बार हम लोग एक रिजल्ट स्टोर करेंगे. सो यू रिटर्न dfx. अभी अगर तुम देखो, अगर तुम ऑलरेडी फाइनल इंडेक्स पे हो तो तुमको कितना नंबर ऑफ जंप्स लगेगा? 0, राइट. यहाँ पे बस चेंज किया 0. अभी तुम एक ऐसा पोजीशन एनकाउंटर करते हो जहां पे ये वाला पोजीशन, ये 0 वाला. इस पर्टिकुलर पोजीशन से तुमको कितना नंबर ऑफ पोजीशंस लगेगा टू रीच द फाइनल पोजीशन? इनफिनिट, राइट, इनफिनिट. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेस इनिशियलाइज करके रखते हैं कि लाइक रिजल्ट इज इक्वल्स टू इंट मैक्स ले सकते हैं और कुछ बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, सपोज दिस, ठीक है. ऐसा भी ले सकते हैं. अभी अगर इफ nums of I, or rather here k है हमारा, nums of k equals to 0, so तुमको पता है उसके बाद तो तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे. so you return वही सेम नंबर 6 times 0. फाइन. फिर तुम मैक्स जंप कैलकुलेट किए कि मैक्सिमम जंप्स कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के. ये वाला पार्ट चेंज करना होगा and you'll have to make it that result is equals to, we need minimum number of jumps, right? So min of the previous result plus 1 comma 1 plus. Why? Because every time you are jumping you are incrementing the step by 1. Okay. तो हर बार, अच्छा हम बताते हैं इसमें क्या होगा. dfs of nums comma I, and you will be returning this. Let's see if this works. क्या हो गया? Okay. अच्छा वहां पे इंट लगेगा तो इंट लगेगा. Yeah, I have to typecast this particular thing to integer. Integer comparison में. अरे यार, पिछला वाला का ही मिस्टेक्स वापस से. फाइन. अभी इसको देखो कि हो क्या रहा है इसमें. इसका रिकर्शन ट्री बहुत अलग सा, मतलब इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी रिकर्शन ट्रीज के अकॉर्डिंग. ये थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे क्या होता है कि ये तो ठीक है, बेस कंडीशन है, ये जीरोथ वाला है, वो सब ठीक है, मैक्स जंप है. ये वाला पर्टिकुलर लाइन पे क्या हो रहा है, you'll have to understand this is res is equals to minimum of res comma 1 plus dfs nums comma I. हम nums अभी के लिए n लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाना, comma I. Now what, how is this recursively called, we'll focus on that particular part. Our interest is कि इसमें res को कैसे स्टोर किया. हमने क्या किया कि हम यहाँ से वापस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है.
यहाँ पे वापस कॉल कर रहे हैं तो रेस्ट तो री इनिशियलाइज होना चाहिए वापस से, या 10 to the power 6 के अकॉर्डिंग। तो ये रेस्ट को स्टोर कैसे किया? तो एक्चुअली इसका जो रिकर्शन ट्री है वो, ये पूरा चीज रिकर्सिवली कॉल नहीं हो रहा होता है, ठीक है। जब रिकर्शन होता है तो जहां पे ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट रिकर्सिवली कॉल होता है। ऐसा समझो कि रेस्ट तुम यहाँ पे 10 to the power 6 लेके रखे हो, तो यू आर एक्चुअली स्टोरिंग इट मिनिमम ऑफ 10 to the power 6 कॉमा 1 plus DFS ऑफ समथिंग n कॉमा आई। अभी जब ये वाला पार्ट कॉल होगा और यहां से कुछ एक आंसर निकल के आएगा, ठीक है, यहां से लेट्स से तुम एक और बार डीएफएस कॉल करोगे, तो एक और बार डीएफएस कैसे कॉल करोगे? तुम्हारा वापस से होके ऐसा आएगा कि मिनिमम ऑफ जो भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेस रहेगा वापस से, जो कि 10 to the power 6 ही रहेगा इस केस में भी, क्योंकि हाँ, ये वाला पोजीशन को कॉल किया हो ना, तो वापस से ये री इनिशिएट होकर 10 to the power 6 ही होगा। बट ये डीएफएस को ये डीएफएस कॉल अगर इस बार 1 plus DFS ऑफ समथिंग एल्स आएगा, n कॉमा आई प्लस समथिंग एल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट सिर्फ कॉल बैक होगा। तो एट द एंड हमें क्या मिल रहा है? देखो, एट द एंड क्या मिल रहा है? यहाँ से सपोज कि तुम यहाँ से लास्ट इंडेक्स पहुंचने में तुमको आंसर मिला 2, सपोज यू गेट 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? मिनिमम ऑफ दिस विल गेट मॉडिफाइड टू मिनिमम ऑफ 10 to the power 6 कॉमा 1 plus 2। तो क्या होता है मिनिमम में? यहाँ पर रेस्ट जो स्टोर होगा वो 3 होगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। तो नाउ दिस बिकम्स मिनिमम ऑफ 10 to the power 6 कॉमा 1 plus 3, ठीक है। अभी रेस्ट में क्या स्टोर हो जाएगा बताओ? इट विल बी 4, और तुम्हारा लास्ट का आंसर जो तुम रिटर्न करो वो 4 रिटर्न होगा। समझे? वो पूरा पार्ट कॉल बैक नहीं होता है, जिस पॉइंट पे तुम रिकर्शन कॉल कर रहे हो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग तुम रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते, राइट? ऐसा हम लोग पहले भी देखे हैं, दैट यू आर एक्चुअली 1 plus समथिंग, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, ट्रीज पढ़ रहे थे, जब हाइट निकाल रहे थे, राइट? जब हम लोग डेप्थ में नीचे जा रहे थे तो 1 plus समथिंग, ठीक है। सो इफ यू कैन गेट अ बिट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर इसको वापस से सबमिट करेंगे तो टाइम लिमिटेशन एरर आएगा पक्का से। अभी इसका ग्रीडी सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसका ग्रीडी थोड़ा बेटर है और लाइक सोचने वाला है थोड़ा सा एक्चुअली। देखो हमें क्या चाहिए, फॉर अ गिवन एरे, ठीक है, आर रिक्वायरमेंट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो इसको बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखो कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही काम करना है। तो अभी कैसे कैलकुलेट करें? तो 2 को जब हम लोग कैच करते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स 2, what are the possible jumps? You can either jump to 3, you can either jump to 1, right? बट इन दोनों जंप्स में कितना स्टेप इंक्रीमेंट हुआ? 1, ठीक है। नाउ फॉर इफ यू कैच 3 and you, what is the maximum jump you can make? If you catch on to 3, you can jump either to 1 or 4, right? So either you come here, or you come here, or you come here. But from this particular position, if you check, what is the maximum number of steps that you are taking? यहां से यहां तक 1, और यहां से अब तुम कहीं पे भी जाओ इन तीनों में से, you will take 2 steps, ठीक है, राइट? और फिर इस पर्टिकुलर 1 के अकॉर्डिंग, if you catch on to this one, you can only jump here, and only also even at this particular thing you will take 2 steps, okay. Now if for this one, if you go and check कि अगला jump कहाँ पे possible है, so for this one you come here and you take 3 steps, right? तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे स्टेप्स को दिमाग में रख के काम करना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन द इंडेक्स दिस पर्टिकुलर थिंग टेक्स 0th स्टेप, ठीक है। नाउ these are the indexes that take 1 step, and these are the indexes that will take 2 steps, ठीक है।
समझ रहे हो, ये वाला पार्ट जितना है ये 1 स्टेप ले रहा है, और ये वाला पार्ट जितना है ये 2 स्टेप ले रहा है। तो अगर हम इसको, इस पूरे फॉर्मेट को अगर हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाले फॉर्मेट में, इफ यू रिमेम्बर, डालने का ट्राई करें, नहीं भी डाले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है ये भी ठीक है। बट अगर इसको इस फॉर्मेट में डालने का क्वेश्चन लाइक ट्राई करें और यू इंडेक्स मेंशन कर दो 3 4 5, आर गोल इज टू रीच 5, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम 2 और हर लेवल पे वो सारा नोड्स रखो जो एक स्टेप पे पॉसिबल हो। 3 एक स्टेप पे पॉसिबल है, 1, ठीक है। अभी वो सारा नोड्स जो 2 स्टेप पे पॉसिबल है, और 3 से पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ लिखो 1, और यहाँ लिखो 4, ठीक है। हमारा गोल क्या है, 4 पहुंचना। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। और अगर फॉर क्लैरिटी हम ये लिख देते हैं 2 2 2, और इंडेक्सेस समझ रहे हो, इंडेक्स तो 0 1 2 3 4 5, आवर गोल इज टू रीच द फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग हर पोजीशन पे चेक करेंगे। सबसे पहले तो शुरू हम लोग इस पॉइंट से कर रहे हैं, राइट, रूट से, और फिर चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम विंडो, अगर एक टर्म दे तो एक विंडो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, हर लेवल एक एक विंडो है, दिस इज वन विंडो, दिस इज वन विंडो। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो ये विंडो है एक, तो ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज। Sorry. So what I am telling you is that this is a window, right? And this is also a window. तो विंडो में हम लोग वो वाला लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट कि एक लेफ्ट राइट ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, और इसमें भी लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अब सब चीज बहुत क्लियर होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल से ही, कि लेफ्ट और राइट लेना है। इनिशियलाइज कहाँ से करना है, 0 से, फाइन। अभी तुम हर बार क्या चेक कर रहे होगे, यू विल बी चेकिंग कि तुम फारदेस्ट कहाँ तक जा सकते हो, है ना। और हमारा इंटरेस्ट है कि हम लोग को राइट वाले इंडेक्स को, ठीक है, फाइनल पोजीशन पे पहुंचाना है, ओके, फाइनल पोजीशन पे पहुंचाना है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज विल रन अ लूप दैट व्हाइल राइट इज, और फाइनल से आगे भी चला जाए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहुंच सकते हैं ना, व्हाइल राइट शुड बी, फाइनल से आगे नहीं जाएंगे, रुको रुको देखते हैं। व्हाइल राइट इज नम्स ऑफ साइज -1, तुम एक पोजीशन डिक्लेयर करते हो कि फारदेस्ट अभी फिलहाल 0 है। अब बस तुम इसके लिए चेक करते हो अगर वापस से कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, देखो अभी यहाँ 3 और 1 है, ठीक है, हमारा एक विंडो में 3 और 1 है, लेफ्ट और राइट। बट सपोज हमारे एक विंडो में ऐसा होता कि 3 1 1 9 1, ठीक है, ऐसा होता लेफ्ट और राइट। तो तुम ये बताओ कि अगला जो विंडो होता, इस पर्टिकुलर विंडो से हम लोग अगला विंडो कौन सा पहुंच सकते थे, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, इफ दिस वाज द पर्टिकुलर विंडो, let me just check once. If this was the particular window, so what is the next possible window that we can reach? 3 से तो तुम यहाँ तक आओगे, 1 से यहाँ तक आओगे, 1 से यहाँ तक आओगे, बट 9 से तुम कहीं ना कहीं आगे पहुंच जा रहे होगे, ठीक है। और ये 1 से तो यहाँ पे आ रहे होगे, तो लेफ्ट तुम्हारा यहाँ आएगा, बट राइट पोजिशन ये जहाँ 9 एंड करेगा वहां पे आएगा। दैट इज वाई यू नीड अ फॉर लूप, कि यू विल हैव टू चेक एवरीथिंग दैट इज इन द विंडो, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड आई विल एंड एट राइट, आई प्लस प्लस, and then you'll check कि far is equals to max of जो previous far है and I plus num of I, ठीक है। यही तो मैक्सिमम पोजीशन है जो तुम पहुंच सकते हो वहां से। और फिर क्या करोगे, देखो एक विंडो यहाँ खत्म हो रहा है एक राइट पे, तो लेफ्ट कहाँ पे होगा अगला लेफ्ट, थिंक, अगर एक विंडो यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगला लेफ्ट विल ऑफ कोर्स भी राइट +1। सो इसके बाद तो वेरी ऑब्वियस कि L इज इक्वल्स टू राइट +1।
आर कहाँ पे होगा, एक विंडो का आर कहाँ पे होगा, एल तो यहाँ फिक्स है, आर कहाँ पे होगा, जो मैक्सिमम पहुंचे हैं, सो आर को तुम फार कर दो, ठीक है। और एक विंडो जब तुम आगे बढ़ते हो, तब तुमको रिजल्ट को, हमारा एक रिजल्ट ऑफ कोर्स स्टेप है ना, स्टेप चाहिए अपने को, तो हर विंडो पे हमारा एक स्टेप आगे जा रहा है, सोचो, हर विंडो पे एक स्टेप आगे जा रहा है, ये 0 स्टेप पे पहुंचेंगे, ये 1 स्टेप पे पहुंचेंगे, ये पूरा विंडो 2 स्टेप पे पहुंचा जाएगा, आगे कुछ होता तो वो 3 स्टेप पे पहुंचते, तो हर एक स्टेप पे हमारा रिजल्ट एक एक प्लस होते जा रहा है, राइट, पॉइंट है। और लास्ट में फिर रिटर्न कर दो रिजल्ट। ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में भी होता तो बहुत अच्छा होता, बट सिंस हमारे को ये वाला फॉर्मेट में है, वेक्टर फॉर्मेट में, तो लेफ्ट राइट वाला पॉइंटर्स लेके बहुत सही सॉल्व हो सकता है। नाउ वी रीसेट दिस ऑफ कोर्स बिकॉज ये सबमिट नहीं कर रहे, ये पेस्ट करा था यहाँ पे, नहीं, हम्म, fine। वापस सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक रिजल्ट, 0 इनिशियलाइज कर दिया, वेरी गुड। नाउ वी नीड दो दो पॉइंटर, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0, कॉमा राइट इज इक्वल्स टू 0, हो गया। अभी कहाँ से कहाँ तक क्या अप्रोच डाले वापस से, कि राइट हमारा एंड से पहले तक रुकना चाहिए, so वाई राइट इज लेस देन hamster size minus 1। अभी हर एक विंडो के लिए यू हैव अ फार पॉइंट इनिशियलाइज टू 0, ठीक है। और क्या बोला कि I is equals to left, I is less than equals to right, right plus, okay. Now we'll have to check far, right, far is equals to maximum of previous far that we had and I plus nums at I। hmm? अभी ये फार करने के बाद तुम फॉर लूप से बाहर निकल के राइट लेफ्ट और राइट करो, राइट, तुम हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट और राइट थोड़ी सेट कर रहे हो, तुम पूरे विंडो के लिए कर रहे हो। अभी ये विंडो तो एक वाइल लूप के अंदर चल रहा है, ये फॉर तो सिर्फ हम लोग को फार वाला अपडेट करने के लिए चाहिए था। तो अब यहाँ पे तुम एल को वापस से r+1 कर रहे होगे, राइट को तुम फार कर रहे होगे, और रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर रहे होगे, हम्म? और वाइल लूप के बाहर तुम रिटर्न करोगे रिजल्ट। एक बार चेक कर ले, लग तो सब सही रहा है, लेट्स ट्राई रनिंग इट, दिस वर्क्स, विल बी डन फॉर द डे, एंड लेट्स सी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, दैट विल बी अपडेटेड, ओके, दिस वर्क्स आई थिंक, परफेक्ट, ओके। एक मेरे पास डमी अकाउंट होता तो हम रिकर्शन वाला भी रन करके दिखाते हैं, इसमें मेरा वो एक्सेप्टेंस रेट हार्म होगा बहुत खराब से, एनीवेज, फाइन फाइन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, while r is less than nums size -1, और उसके अंदर एक फॉर लूप, कितना होना चाहिए, हर बार r पर फार पे सेट हो जा रहा है, ठीक है। इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि तुम्हारा विंडो बहुत छोटा छोटा बने, 1 1 1 1 1 1 1, लेफ्ट राइट यहाँ से इनिशिएट किए, फिर लेफ्ट राइट यहाँ पे ही आएगा, हाँ, फिर लेफ्ट राइट यहीं पे आएगा, ऐसे करके होगा ना, सोचो, अगर 1 1 1 1 रहे, वही तो होगा ना, अगला विंडो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, हर एक स्टेप एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा, एक एक स्टेप ले रहे हो तो तुम एंड तक में, तो एन तक में पहुंचेंगे ना, ये वाला लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर एक एक स्टेप रहेगा तो, समझ रहे हो। सो ये वाला लूप तो तुम्हारा
नॉर्मल लूप की तरह चल ही नहीं रहा, क्योंकि तुम आर को तो ये बार बार बहुत आगे आगे बढ़ा रहे हो ना, मतलब विंडोज के अकॉर्डिंग। एक्चुअल लूप जो चल रहा है वो तो ये है, और ये कितना देर तक चलेगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना चलेगा। सो योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोना बी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1। Okay, if you got it. And I guess we are done for today, although we have time left. But I think we'll be stopping today here only. बाकी के updates community drive में. Till then, see ya.